सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फ़र्श खाक पे जाड़े में सोता था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा पालनहार है, बेहिसाब लातादाद दुरूद व सलाम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कि आप ही के तुफ़ैल कारखाना कुदरत रवां दवां है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। My dear viewers, welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm your host, and once again we are here with our humble presence to make you appeal once again for the people, for the humanity who are in need. There are people in thousands, there are people in millions who are waiting for your help, who are needy, who are deserving, who are suffering from hunger, from thirst. They are shelterless, they need mosques, they need water hand pumps, they need food so that they could welcome the upcoming blessed month of Ramadan, as we are going to welcome this blessed month of Ramadan by the grace of Allah Almighty. You know very well, Asas has been serving the humanity for last 16 years without any discrimination of sect, color and race. And you people, you viewers, you donors are witnessed, alhamdulillah. You see usually our aids, our visuals and photos, and through them you can understand, you can witness that, alhamdulillah, how extraordinary efforts being made by Asas. And in this noble cause, the people who are blessed with wealth, they are requested to come forward to help such people who are needy and deserving and who need our help. So in the dire need of food, in the dire need of water, in the dire need of mosques, the people who are blessed with wealth, the people Allah Almighty has given sustenance to them, they are supposed to come forward so that these people could be helped out. In the Holy Quran, Allah Almighty mentions that Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala khullatum wala shafa'ah wal kafiruna hum zalimun. O people who believe, spend from the sustenance what Allah Almighty has given you before the day comes, the day of resurrection, the day of judgment, when there will be no bargain, when there will be no friendship, when there will be no intercession. Indeed, the disbelievers are cruel. So my dear viewers, in the light of this Quranic verse, we can understand how much it is important for the people who are blessed with wealth or who have been given more than their need, more than their sufficient need. So they are supposed to spend from the sustenance what Allah Almighty has given them, so that they could be blessed not only in this world but in the hereafter as well. एहसास हमेशा की तरह इस बार भी आपको ये आवाज़ देने, आपको ये सदा देने, आपको अपने हिस्से की आज़ान देने आया है कि लोग हैं हज़ारों में, लाखों में जो मुंतज़िर हैं कि उनकी मदद की जाए। आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, उसके फ़ज़ल से रमज़ानुल मुबारक की आमद के मुंतज़िर हैं, उसके इस्तक़बाल की तैयारियों में मसरूफ़ अमल हैं। वहीं एक तबका जिसको रब ने अपनी हिकमत की वजह से महरूम रखा, दौलत से उस अंदाज से उस तबके को नहीं नवाजा गया, फैसिलिटीज़ से, आसाइशों से और नेसेसिटीज़ से उस अंदाज से उस तबके को नहीं नवाजा गया जिस तरह के मुझे और आपको नवाजा गया। गोया कि रब ताला उनका इम्तिहान ले रहा है कि वो आया कम मिलने पर सब्र करते हैं या नहीं। They are being examined by Allah Almighty whether they show their patience in need or they don't. The people who are blessed with wealth, they are also being examined by Allah Almighty that if they spend from the sustenance what Allah Almighty has given them, so it means that they are showing gratitude to Allah Almighty to have such a wealth that is more than their need. It means, alhamdulillah, they are the people, they could be said that they are blessed by Allah Almighty, and inshallah they will be rewarded with the best rewards on the day of judgment. So with this passion we come here, that the people who can feel pain
for others or who really want to come out to help the humanity, Asas is going to play its role as a communication bridge between the people who are needy and the people who are blessed with wealth. That this is a golden opportunity, alhamdulillah, we are going to share it with you, and we always love to share it, that we are going to play our role as a communication bridge. If you, my viewer, my donor, if you are watching from any corner of the world right now, this is special or exclusive transmission of Asas, you can help any needy person, you can help any needy family, you can provide them with a ration, Ramazan ration pack, you can make Asas, you can ask Asas to install a water hand pump or a small hand pump in such an area where there is a dire need of water in any area of Pakistan. If you want to feed people, Muslims, brothers and sisters with iftar plus dinner, alhamdulillah, we are going to play our role as a communication bridge. Yes, you can feed people with iftar plus dinner so easily, and Asas is going to play its role, alhamdulillah, as usual, as it has been doing for last 16 years. If you want Asas to build a mosque in such an area where there is a dire need to build a mosque, so that our Muslim brothers could go there and offer their prayers, recite the Holy Quran, and do some other good deeds, so that you could be blessed in this world and in the hereafter. हम एक पैकेज हमेशा की तरह बनाते हैं जो आपसे शेयर करते हैं कि जो लोग भी मुखय्यर हजरात हैं, साहिबान सरवत दौलत हैं और वो अपने मुसलमान बहन और भाइयों की मदद करना चाहते हैं, बहुत सारे हमने तरीक़े जो है समझ लें इख्तियार किए हैं, हमने बहुत सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ली हैं, हमने बहुत सारे अरेंजमेंट्स भी किए हैं ताकि आने वाला रमज़ान हमारे लिए बहुत ही आइडियल रमज़ान हो। और आइडियल कैसे कि हम हर कोशिश करते हैं, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि हम अपने रब को इस महीने में राज़ी करें, अल्लाह का ये मेहमान महीना हमसे राज़ी होकर जाए, हमसे खुश होकर जाए। अहादीस की रोशनी में हमें ये बताया गया है कि ये रोज़ा अगर आप इसको उस अंदाज से रखें जैसा जिस हक़ के साथ इस रोज़ा रखने का हक़ है, ये रोज़ा बरोज़े हश्र उस बंदा मोमिन की अल्लाह की बारगाह में शफ़ात करेगा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा कि जो बंदा मोमिन तक़वा के हुसूल के लिए तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए रमज़ान के रोज़े रखता है। तो ये इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जब हमें मिलने जा रही है, तो वहीं याद रखिए कि ये ब्लेस्ड मंथ ऑफ रमज़ान जो है ना, ये गमख्वारी का भी महीना है, ये हेल्पिंग अदर्स का एक पैगाम लेकर आता है, लोगों की गमख्वारी का पैगाम लेकर आता है। जहाँ आप अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, अपने इंतज़ामात कर रहे हैं, रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं, वहीं एक और महरूम तबका है जो उस अंदाज से ये तैयारियाँ नहीं कर पा रहा, वो भी चाहता है कि हमारे और आपकी तरह वो रमज़ान का इस्तकबाल करे और रमज़ान में वो सारी काविशें करे, वो तमाम कोशिशें करे कि जिससे रब राज़ी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये हर्डल्स बन जाते हैं उनके लिए। जो माशी बदहाली है, जो इन्फ्लेशन रेट आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में भी क्या है, दुनिया भर में क्या है, बहरहाल उनको बड़ा सफ़र करना पड़ता है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ से गुज़रना पड़ता है, और फिर शायद वो उस अंदाज से अपनी सहरी का, इफ्तार का इंतज़ाम नहीं कर पाते। हम यकीनन गर्मियों में भी रोज़ा आसानी से रख लेते हैं कि जब इंशाअल्लाह रोज़ा इफ्तार करेंगे तो जितना दिल करेगा पानी पी लेंगे, मशरूबात पी लेंगे। लेकिन हम उस तबके की बात कर रहे हैं, हम उस महरूम तबके की नाजरीन बात कर रहे हैं कि जहाँ पानी नापैद है। ऐसे इलाकों में अगर आप में से जो मुखय्यर हजरात हैं वो हैंड पम्प्स प्रोवाइड कर दें और वहाँ के लोग, वहाँ के रहने वाले बासी पानी पिएँ, तो ये खल्क़े खुदा वहाँ से जब पानी का हुसूल जब भी मुमकिन बनाएगी, आपको लाखों दुआएं देगी। आप उस दस्तरखान पर अपने हिस्से की प्लेट्स रखें, आइए इफ्तार कराइए उन लोगों को कि जिनको इफ्तार कराना इतना बाइसे सवाब है कि अगर एक बंदा मोमिन दूसरे बंदे मोमिन को इफ्तार कराए तो इफ्तार कराने वाले को भी वही सवाब मिलता है, वही अजर मिलता है, वही रिवॉर्ड मिलता है जो रोज़ा रखने वाले को, रोज़ा रख कर इफ्तार करने वाले को मिला। तो ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि 50 लोगों को एक बार बैठकर इफ्तार कराई जाए एट द टाइम ऑफ इफ्तार प्लस डिनर, 50 लोग एक साथ बैठकर करें, अल्लाह की हुजूर दुआएं करें, तो आप $200 के साथ उनकी ये मदद कर सकते हैं। आप 150 पाउंड्स देकर आप उनकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह दीगर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो इंशाअल्लाह आपकी मदद हमें दरकार है। डिटेल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, हमें टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एहसास के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते हैं
ये वो वॉलंटियर्स हैं जो रज़ाकाराना तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हमारे ही इस कॉज़ में, जो आपका और हमारा, हम दोनों का मिलकर, हम सब का मिलकर एक कॉज़ है, उस तबके के लिए जो महरूम तबका है, नीडी तबका है, सफरिंग तबका है, उनकी मदद के लिए ग्राउंड पर रहकर, फील्ड पर रहकर मुआवनत करते हैं और फ्रंट मैन का रोल प्ले करते हुए लोगों की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। सैयद फ़हद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस वंस अगेन। और हम चाहते हैं कि सर इनिशियली जो हमेशा की तरह हम आपसे कहते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे व्यूवर्स डोनेट कर रहे हैं और उनकी मोहब्बतें कंट्रीब्यूट हो रही हैं और इस नोबल कॉज में लोग अपना जो भी एहसासात हैं, जज्बात हैं, अपने डोनेशंस के ज़रिए वो जो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं और इस नोबल कॉज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी भी एक तसल्ली और तशफ़ी हो। सर क्या तैयारियां हैं, कितना हम अचीव टारगेट्स कर चुके हैं, कितने टारगेट्स अचीव करने हैं हमें, ताकि हमें ये भी पता हो कि अचीव क्या कर लिया, हमारे डोनर्स यकीनन खुश होंगे जानकर, और ये भी फ़िक्र पहुँचे कि मज़ीद काम कितना करने की ज़रूरत है। क्या फरमाइए? बिल्कुल सुमैर भाई, सबसे पहले एक बार फिर शुक्रिया अपने प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। वेलकम। देखिए, हमारी तैयारी तो एहसास की 3 से 4 महीने पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे अपने एप्लीकेशन देते हैं। हमारे जो लोकल फ्रिक्वेंट पर्सन है वहाँ पे, जो मकामी होते हैं, जो एहसास की नुमाइंदगी करते हैं वहाँ पे, उनकी जानिब से हमें रोज़ाना की बुनियाद पर कॉल्स और मैसेज रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो अफ्तारी की उम्मीद लगा के बैठे हैं, कि जिनको ये उम्मीद है कि इस बार उनको रमज़ान का राशन पिछले साल की तरह मुहैया किया जाएगा, चाहे हैंडपम्प से मुतालिक हो, चाहे राशन से मुतालिक हो, चाहे उनकी अफ्तारी से मुतालिक हो। एक उम्मीद बन चुकी है सुमेर भाई वहाँ पे लोगों को। हमारे पास डेली जो हमारे फोकल पर्सन है वहाँ पे, उनसे हम डेली बेसिस पे कनेक्ट रहते हैं, वो हमें बताते रहते हैं। अब इस बात का अंदाज़ा लगाई, जिन शहरों में हम रहते हैं वहाँ पर महंगाई का क्या हालत है, वहाँ के भी हालात कदर मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे भी बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी भी प्रॉपर तरीके से मुयसर नहीं है। तो सोचें वहाँ पे क्या हालात होंगे जहाँ पे आपका कोई अफ्तार कराने वाला मौजूद नहीं होगा। हमारे अपने दस्तरखान तो अफ्तारी से सजे होते हैं, हर किस्म की जीनत बनी होती है हमारी दस्तरखान की अफ्तारी, लेकिन वहाँ पे वो लोग इन चीज़ों के जायके से भी महरूम हैं। उसकी वजह यही है कि ना वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, ना वहाँ पे कोई पहुँच पाता है। एक शहर से वहाँ तक पहुँचने का रास्ता 7 से 8 घंटे होता है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, 7 से 8 घंटे उस शहर में पहुंचने के बाद मज़ीद 1 से 2 घंटे लगते हैं उन जगहों तक पहुंचने में जहां पे हमारे बहन भाई रहते हैं। आप सोचिए कि इतना दूर फासला तय करने के बाद भी आप उन तक पहुंचते हैं, तो कितनी उम्मीदें होती हैं आपको उन लोगों से। उनको सुमेर भाई पता होता है कि इस साल भी एहसास अफ्तारी का इंतज़ाम करेगा, इस साल भी हमारे बच्चों के लिए ईदी के कपड़ों का इंतज़ाम होगा, इस साल भी हमारे लिए पानी का इंतजाम। बिल्कुल, हमारे फोकल पर्सन, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि हमारे डेली बेसिस पे हमसे कांटेक्ट में रहते हैं कि आज हमारे पास इतनी एप्लीकेशन मौसूल हुई हैं, इस घर में ये प्रॉब्लम है, अफ्तारी के लिए इतने लोग हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, ना सिर्फ अफ्तारी और पानी के लिए, इसके साथ मस्जिद के लिए भी उतनी ही तादाद में हमारे पास दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं लोगों की। और आपको पता है ये सब किन लोगों की वजह से मुमकिन हो पाएगा। अल्लाह अकबर। और यकीनन हम इस उम्मीद के साथ ही आपको आवाज़ देते हैं, सदा लगाते हैं, अपने हिस्से की अज़ान देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यकीनन इस दुनिया में इस वक्त अच्छे लोग मौजूद हैं, जब भी ये कारखाना कुदरत जो है वो चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो हम फ़िक्र लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, ग्राउंड पर रहकर फ़हद भाई हैं, दूसरे हमारे फवाद भाई हैं, दीगर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जिस अंदाज से इन्होंने वहाँ के हालात देखे हैं, लोगों के हालात मालूम किए हैं, फ़र्स्ट हैंड नॉलेज रखते हैं ये लोग, और इन्होंने देखा है कि ऐसे घर हैं जहाँ पर कई कई दिन गुजर जाते हैं चूल्हा जलाने के लिए, हंडिया पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए उनके पास कोई इंग्रेडिएंट्स, कोई अशिया, कोई सामान कुछ मौजूद नहीं है। और इस कसमा पुरसी के हाल में अगर कोई आप में से रमज़ान राशन पैक किसी ऐसी दहलीज़ पर पहुंचा दे कि जो नीडी फैमिली हो, ज़रूरतमंद हो, और ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहता हूं, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं उस तबके के लिए कि जो सफ़ेद पोश तबका, यानी कि जो किसी के आगे अपने हाथ दराज करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि बस हम अल्लाह के ही मोहताज रहें और अल्लाह हम सबको अपना ही मोहताज रखे, अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना करे। अगर आप चाहते हैं, दुनिया में बहुत सी मुश्किलात होती हैं, ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात होती हैं, आप अगर चाहते हैं कि मैं इस मुश्किल में गिरफ़्तार हूँ, मुझे कोई तरीका बताइए कि मैं इससे क्या निकलूँ, कि एक बड़ा आसान तरीका है कि आप ज़मीन वालों के काम आसान करने लगें, आसमान वाला आपके कामों को आसान कर देगा। विटनेस हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताते हैं कि हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, ऊपर से हम परेशान भी थे, अल्लाह ने हमारे दिल में यह बात डाली कि हम गरीबों की मदद करें, हम भूखों को खाना खिलाएं, हम पानी का कहीं पर
कोई पंप लगवा दें, हम कहीं पर पानी की कोई मशीन लगा दें, खल्क़े खुदा वहाँ से पानी पिए। वो अपने ख़ुद ज़बान से ये बात इकरार करते नज़र आते हैं कि अल्लाह ने हमारे गुमान से बढ़कर हमें अता किया और ऐसे ऐसे दरवाज़े हम पर रिस्क के खोल दिए गए कि जिसका हम गुमान भी नहीं कर सकते थे। हम आपको दुनियावी तौर पर तो ये मोटिवेशन देते हैं, ये तरगीब और ये तहरीक देते हैं कि देखें अल्लाह ताला दुनिया में भी दिया हुआ, यानी कि जो आप अल्लाह की राह में देते हैं ये अल्लाह से तिजारत है, अल्लाह से कारोबार है। और याद रखिएगा दुनिया के जितने कारोबार आप उठा लें उसकी बुनियादी डेफिनेशन ये है कि हर कारोबार अपने साथ रिस्क लेकर आता है, लेकिन ये जो तिजारत आप अल्लाह के साथ कर रहे हैं ये रिस्क फ्री तिजारत है, यानी कि इसमें आपका मुनाफा ही मुनाफा है। और ये मुनाफा आप दुनिया का जितना भी मुनाफा कमा लें, दुनिया के कारोबार से आप मिलीनियर बिलीनियर बन जाएं, लेकिन याद रखें एक अटल हकीकत है मौत, कि आप करोड़पति बन जाएं लेकिन एक दिन आप ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। तो क्यों ना हम उस बैंक बैलेंस पर ज़्यादा फोकस करें कि जो मरने के बाद भी हमारे काम आए। आज हमारे घर रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, लेकिन ऐसे काम ज़रूर करें कि जिससे हमारी कब्र भी रोशन हो सके। बड़ी तादाद में ज़रूरत है राशन पैक्स, रमज़ान राशन पैक्स उन घरों तक हमें पहुँचाने। हज़ारों में हमारे टारगेट्स हैं कि हमें रमज़ान से पहले पहले उनकी दहलीज़ पर ख़ास तौर पे जो सफ़ेद पोश तबका है, जो ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल बैगर्स नहीं कहलाते, वो किसी से मांगते हुए शर्माते हैं, उनकी ईगो हर्ट होती है और हम भी उनकी ईगो पर और उनकी जो खुद शनासी होती है और जो इंसान की खुददारी होती है उसको हम नहीं चाहते कि कॉम्प्रोमाइज़ करें। पूरे प्रोटोकॉल के साथ आपकी मोहब्बतें, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपके डोनेशंस इस अंदाज से उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि एक भाई दूसरे भाई के घर कोई तोहफ़ा लेकर, कोई मदद लेकर पहुँचा है और वो कोई आर महसूस ना करे उसको कबूल करने पर। आपने देखा हमारे फुटेजेस के अंदर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो उनके साथ बैठकर इफ्तार करते हैं। पानी का कहीं पंप लग रहा है तो लोगों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि फैमिली का ही कोई शख्स आया है और अल्लाह ने उसको हमारे लिए फ़रिश्ता बनाया है, ज़रिया बनाया है, वसीला बनाया है। और वहाँ पर हैंड पंप के लगने से लेकर उसकी तनसीब के अमल से लेकर और जब तक वहाँ से साफ़ पानी फिर रवा नहीं हो जाता, वहाँ के लोगों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो दीदनी होती हैं। और हर दिल वो ज़बान से बाद में दुआ करेंगे। जैसे ही कहीं पानी मिलता है, लोगों को साफ़ पीने का पानी मिलता है, कहीं पर भी लोगों के लिए दस्तरखान इफ्तार का लगता है, कहीं पर रमज़ान राशन पैक्स पहुँचते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यकीन जानिए हम नहीं कह रहे, जो लोग ग्राउंड पर रहते हैं हमारे वॉलंटियर्स, उनकी ज़बान से हमने ये अल्फाज सुने कि लोगों में एक ईद का समा होता है। और याद रखें उदास चेहरों पर अगर आप मुस्कुराहट बिखेरने का सबब बनते हैं तो आपसे बढ़कर अमीर कोई नहीं है। क्या कहिएगा उस शख्स के बारे में कि जिसको रब ने बहुत नवाजा, बेहिसाब नवाजा, लेकिन किसी का दर्द सुनकर वो उसकी मदद को ना आए, किसी भूखे को देखकर उसका दिल ना करे कि मैं इसको खाना खिला दूं, किसी प्यासे को देखकर उसका दिल ना करे कि मैं इसके लिए हैंडपम्प लगवा दूं। आप यकीन जानिए जो लोग ये कर रहे हैं, इस नोबेल कॉज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन आप यकीन करें, मुझे कहने दीजिए ये बात कि अल्लाह ने आपको चुना है, आप अल्लाह के चुनीदा सिलेक्ट किए हुए बंदे हैं, क्योंकि ये तौफीक हर किसी को नहीं मिलती कि वो किसी का दर्द, किसी की मुसीबत और किसी की ज़रूरत के बारे में सुने और अपनी जेब से निकाल कर वो पाउंड्स खर्च करे या फिर वो डॉलर्स खर्च करे। ये उसी के हिस्से में ये तौफीक आती है कि जो ये डिज़र्व करता है, वरना अल्लाह की ज़ात काफ़ी है सबके लिए। अल्लाह ताला चाहता तो सबको यकसर एक साथ रिस्क जो है वो तकसीम कर देता, इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता, लेकिन फिर इम्तिहान कैसा और फिर आजमाइश कैसी। अल्लाह हम सबको जो साहिबान सरवत व दौलत हैं, जिनको रब ने दौलत उनकी ज़रूरत से सिवा दी है, अल्लाह हमें इस इम्तिहान में कामयाब करे कि जब ज़रूरत के लिए पुकारा जा रहा है, मदद के लिए पुकारा जा रहा है। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा नाज़रीन, दिल पर हाथ रखकर आप ये बात सुने, ये जो हमें मोटिवेशन उलमा कराम से मिलती है कितनी बड़ी मोटिवेशन है। मुस्तनद, ऑथेंटिक, क्रेडिबल हदीस की किताबों में यह किस्सा हमें मिलता है कि एक औरत जो कि गुनाहगार है और उसने कोई नेकियां ज़्यादा नहीं कर रखी, वो नाफरमान औरत है, लेकिन एक कुत्ते को देखती है कि वो प्यासा है और प्यास से करा रहा है, तकलीफ़ में है, मुसीबत में है और उसको पानी मुयस्सर नहीं है। उसके दिल में एहसास बेदार होता है। यही एहसास का पैगाम है आपके लिए कि हम एहसास बेदार करें। एहसास बेदार होता है, वो आगे बढ़ती है और उस कुत्ते को पानी पिला देती है। अल्लाह को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी अदा, उस कुत्ते के लिए जो एहसास उसके दिल में उभरा और फिर उसने जो पानी पिलाकर उस कुत्ते की प्यास बुझाई, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस औरत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। अब ज़रा ख़ुद सोचिए कि आपके जहनों में, चश्मे तसव्वुर में सोचिए कि वो हमारी माएँ,
वो हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन, ज़ईफ़ औरतें जो कि इतनी लागर कमज़ोर हैं, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, पीने के लिए घर में कुछ नहीं है, अगर उस घर में रमज़ान राशन पैक पहुँचेगा, उस घर के बाहर कोई पानी का हैंड पंप लगेगा, उस घर के बाहर इफ्तार का दस्तरखान लगेगा, आप अपने दिल से पूछ कर बताइए कि फिर उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उसको डिस्क्राइब कर सकूं, उन एहसासात, उन जज्बात का इजहार कर सकूं, लेकिन ये हकीकत है, उनके दिल से दुआएं आपके लिए निकलेंगी। और जिस के लिए ये दुआएं अभी तक निकली हैं, विटनेस हैं वो लोग, उन्होंने हमसे शेयर किया है कि अल्लाह ने हमें यकीनन बहुत नवाजा, क्योंकि अल्लाह से आप जो तिजारत करते हैं, ये जो अल्लाह की राह में आप देते हैं, ये यकीनन आप अल्लाह को कर्ज़ देते हैं, और जो अल्लाह को कर्ज़ दे वो दुनिया में भी बेहिसाब करके आपको लौटाता है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी आपको बेहिसाब करके लौटाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इंस्पिरेशन है, हमारे लिए रोल मॉडल हैं। ता क़यामत आने वाली इंसानियत, तमाम ह्यूमैनिटी के लिए आप रोल मॉडल हैं, बेस्ट एग्जाम्पल हैं। आप जब रमज़ान का महीना आता तो वैसे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सरापा जूद व सखा थे, सखावत के पैकर थे, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता तो खुसूसी तौर पर आपकी सखावत बहुत बढ़ जाती। साहबा फरमाते हैं कि हुजूर की सखावत का आलम यह होता कि जो बारिश बरसाने वाली जो बदलियाँ हैं, उनकी रफ्तार से भी ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत हो जाया करती थी। तो अगर हम उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, हम उनके उम्मती हैं, अपने इश्क का इजहार करते हैं, तो उन तकाज़ों में एक तकाज़ा ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, और उन्होंने जो रोशन मिसालें इंसानियत की खिदमत के लिए छोड़ी हैं, हम पर फिर ये फ़र्ज़ है, हम पर फिर ये लाजिम है, ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई दर्द में है तो आप आगे बढ़ें। फात भाई, क्या फरमाइएगा कि एक आँख है जो कि देखती है किसी को दर्द में, किसी को बेसहारा, किसी को गिरता हुआ, और वो आगे बढ़कर उसको सहारा दे देती है। मिसेस जीनत मुश्ताक, माय डियर व्यूवर्स, हमारी इंग्लैंड से एक बहन है, इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है 65 पाउंड से, इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन इस नोबेल कॉज के लिए दी है रमज़ान राशन पैक की मद में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस मोहब्बत को, इस डोनेशन को कबूल फरमाए और आपको बेहिसाब नवाजे। दीगर जो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, फात भाई, हम शेयर भी कर रहे होते हैं ताकि जो हमारे देखने वाले जो दूसरे दीगर हमारे व्यूवर्स हैं, नाजरीन हैं, उनको भी एक मोटिवेशन, क्रॉस मोटिवेशन मिले। सर, कैसा ग्राउंड पर रहकर किस तरह का फ़ील होता है कि कहीं पर हैंड पंप लगा है, कहीं पर इफ्तार का दस्तरखान लगा है? मैं चाहता हूं कि लोगों के जो तासुरात होते हैं, लोग जो आपसे अपने अल्फाजों में, अपने अंदाज में आपसे जो खुशी शेयर कर रहे होते हैं कि कितना क्या फ़ील वो कर रहे हैं, अगर वो फ़ील आप शेयर कर सकें हमारे व्यूवर्स के साथ, ताकि वो मज़ीद मोटिवेट हों और हम इस नोबेल कॉज के लिए मज़ीद उन गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ और ज़्यादा कर सकें। बिल्कुल सुमेर भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा हर साल ही तकरीबन साल में 2 से 3 बार जाना होता है उन जगहों पे विज़िट करने के लिए। ज़बरदस्त। मैं आपको हकीकतन बात बताऊं कि अगर आप फुटेज में से बैकग्राउंड में वहाँ की दरो दीवार देख रहे होंगे तो आपका अंदाज़ा हो चुका होगा कि वहाँ पे क्या हालात हैं। कच्ची दीवारों के मकानात होते हैं, कोई फ़र्श पक्का नहीं होता वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या वसाइल होंगे, क्या ज़रूरियात को पूरा करने का इंतज़ाम होगा। मैं आपको अपनी आँखों देखा हाल बता रहा हूँ कि अफ्तारी का वक्त था, रात की बची कुची रोटी थी और बचा कुचा सालन था। 4 अफराद थे। जब हम सर्वे करने गए तो उस पर भी उन्होंने हाथ पकड़ के हमें बिठाया कि हमारे साथ एक निवाला ही खा लें, हमारा दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह। तो ये क्या वो लोग मांगने वाले लोग हो सकते हैं? क्या वो प्रोफेशनल भिखारी हो सकते हैं? ऐसे लोग, उनका वक्त ख़राब है, अल्लाह ने उनको दिए हुए माल में से ये मौका दिए कि आप उन तक पहुँचाएँ। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे देखते हैं जाके जो हम समझे गवारा नहीं करते अपने घरों में। कोई भी घर का सरबरा नहीं चाहेगा वो किसी के आगे हाथ जोड़े एक वक्त की रोटी के लिए। अगर वो हाथ जोड़ता है तो अपनी औलाद के लिए, अपने घर में रहने वाली ख़वातीन के लिए। वहाँ पे बुज़ुर्ग ख़वातीन भी होती हैं, बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। उन सब की उम्रें वैसे ही होती हैं जैसे मेरे और आपके घरों में। अल्लाह। चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो बच्चे हैं। तो आप एक लम्हे के लिए सोचें, मैं नहीं चाहूँगा, हम में से मौजूद कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि वो किसी के आगे हाथ जोड़े कि 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए। अल्लाह अकबर। ये हम लम्हा ब लम्हा वहाँ पे देखते रहते हैं। अगर मैं आपको कोई दास्तान सुना पे हैं तो हर घर में एक दास्तान मौजूद है वहाँ पे। अल्लाह। जहाँ पे 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, वहाँ पे क्या वसाइल होंगे, क्या मसाइल होंगे। जिस शख्स को सुबह का खाने के बाद रात का पता ना हो कि रात में मेरे पास रोटी मुयस्सर होगी नहीं होगी, उस शख्स के बारे में हम क्या हाल अहवाल बयान कर सकते हैं। जो आप फुटेज में देखते हैं, जो आप प्रोमोज में देखते हैं, ये दर हकीकत वैसे ही होती है। ये कोई शूटिंग नहीं होती वहाँ पे सुमेर भाई। जाके रियलिटीज़ हैं जो आपको मैंने कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था, वहाँ पे आप रैंडमली भी जाएंगे तो आपको ऐसे वाक़यात देखने को मिलेंगे। आपको लगता होगा कि कोई शूटिंग होती है, प्रोमोज में कुछ नहीं होता।
लोग नेचुरली वहाँ पे ऐसे ही रहते हैं, लोगों के घरों में खाने का इंतज़ाम नहीं होता, वहाँ पे पीने का पानी नहीं होता, एक जोहर, एक जगह से इंसान दूसरी जगह से जानवर। आप बताइए, तसव्वुर नहीं कर सकते। आप सोचें ना, एक क्या मैं आप ऐसी जगह से पानी पी सकते हैं? सवाल ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे वो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर एहसास या आपके दी हुई एहतियात की वजह से वहाँ पे हैंड पंप, ट्यूबवेल और वाटर वेल नष्ट ना हो तो शायद उनको ये पानी भी मुयसर ना आए। एक बारिश कितने दिन पानी ज़ख़ीरा कर सकते हैं आप बारिश का? अल्लाहु अकबर। कितने और फिर दिन के मेंटेन लिए? उसको करना, उसको सही रखना। सिमर भाई, खुले आसमान में पानी पड़ा हुआ है ज़मीन पे, कितने दिन वो polluted है। जस्ट रहेगा? कितने दिन हम इस्तेमाल करेंगे? क्या वो पानी पीने के काबिल होगा, इस्तेमाल करने के काबिल होगा? दर हकीकत नहीं होगा। वो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या वहाँ पे सारी चीज़ों का इंतज़ाम मौजूद है? नहीं है। जब भी हम आप तक उन लोगों का मैसेज, उन लोगों की हाल हवाल बयान करते हैं, तब आके आप लोग देख सकें कि हमारे बहन भाई किस हालात में हैं इस वक्त। बताने का मकसद, दिखाने का मकसद दर हकीकत यही होता है कि उनकी सिचुएशन, उनकी हालात आप तक पहुंच सकें। किसी की तशहीर, किसी की मार्केटिंग करना मकसूद नहीं होता, क्योंकि आप एहसास पे भरोसा करते हैं। दिखाने का मकसद कि आपके एहतियात उन लोगों तक ही पहुँचे हैं जो इन हालात का शिकार हैं, जो मसले मसाइल का शिकार हैं। मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है, और हमेशा मुझे उम्मीद होती है आप लोगों से, कि हर साल की तरह इस साल भी आप एहसास का उसी तरह साथ देंगे जैसे आप साल साल से देते आएँ। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि तादाद बहुत बढ़ गई है सुमेर भाई, दरख्वास्तों की डेली बेसिस पे तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। फैक्ट्स एंड फिगर पिछले साल से भी डबल हो चुका है। इरादा हमारा 1,20,000 अफराद को अफ्तारी कराने का था, लेकिन मुझे लग रहा है ये फिगर 1.5 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और बिल्कुल अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और जिन लोगों के दिलों में इस मदद करने के जज्बे के दिए रोशन हैं, वो यकीनन मदद करते हैं। हमारे एक भाई हैं मोहम्मद अफजल, उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है एहसास के साथ, और $185 इन्होंने डोनेट किए हैं पानी के हैंड पंप के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस कंट्रीब्यूशन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक इम्तिहान है यकीनन उस तबके का भी कि जिसको रब ने नहीं दिया। जो हालात इस वक्त फ़हद आपसे शेयर कर रहे हैं नाजरीन, ये एक तल्ख़ हकीकत है, एक बिटर रियलिटी है जिसको फेस किया जाता है वहाँ पर। और यकीनन हर घर में एक कहानी है, एक अफसाना है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की बेरोज़गारी है, ऐसे भी घर देखे गए कि जहाँ कोई कमाने वाला है ही नहीं, कोई करने वाला है ही नहीं कि कोई एफ़र्ट्स करके उन लोगों के लिए कुछ अरेंज कर सके। तो एहसास अल्हम्दुलिल्लाह महाना बुनियादों पर भी उनकी मुआवनत करता है, उनकी मदद करता है। और ये सब पॉसिबल होता है कि जब आप वो मुखय्यर हज़रात के जिनके दिलों में खिदमत खल्क़ का जज्बा मौजूद है, जब आप आगे आते हैं तो फिर हमारे भी हौसले बुलंद होते हैं। और होता क्या है कि बस अल्लाह की मखलूक में उस नादार तबके की मदद हो सकती है। हम गुरबत को ख़त्म नहीं कर सकते, तारीकी को हम मिटा नहीं सकते, अंधेरे हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल हम अपने हिस्से का चराग ज़रूर जला सकते हैं, अपने हिस्से की आप रोशनी ज़रूर वहाँ बिखेर सकते हैं। अगर एक उदास चेहरे पर भी आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाती है तो आप समझ जाएं कि बस आपकी ये दौलत वसूल हो गई। अल्लाह ने आपको इस काम के लिए कबूल कर लिया, आपको सेलेक्ट कर लिया, आपको चुन लिया। और यही आपकी मोहब्बतें हमें चाहिए। ज़रूरत जिस तरह फ़ात बता रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। एप्लीकेशंस का मतलब है कि इस वक्त मदद के लिए जो पुकारा जा रहा है उस आवाज़ में और बुलंदी आई है, वो आवाज़ और लाउड हुई है। यानी कि लोगों की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी मोहब्बत भी बढ़ानी है, हमें अपनी मोटिवेशन बढ़ानी है, हमें और ज़्यादा पैशन के साथ आना है और इन गुरबा के लिए जो हमारे ही मुसलमान बहन और भाई हैं उनकी मदद करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस किस अंदाज से मोटिवेट किया ताकि हम ये अंडरस्टैंड करें, हम इस बात को समझें और फिर अमल भी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमें नवाजा है और ज़रूरत से सिवा हमें दिया है। आज अगर हम जो आप समझ लें सफिशेंट हमारी एक नीड होती है, हमारी डिज़ायर्स होते हैं, वो सब पूरा करने के बाद, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरा करने के बाद अगर आपके पास आज मालो दौलत है, हम आपको ये कन्विंस करने के लिए नहीं खड़े यहाँ कि आप वो सब का सब गुरबा को दे दें और आप उनकी मदद व मुआवनत कर लें। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने हिस्से की प्लेट उनके दस्तरखान पर ज़रूर रखें, आप कुछ लोगों को इफ्तार ज़रूर करवाएं, आप एक दो जगह पानी का हैंडपम्प ज़रूर लगवाएं। पानी के हैंडपम्प के लिए मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे ये भी करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा सदका जारिया है, जब तक खल्क़े खुदा वहाँ से पानी पीती रहेगी। देखें, आप 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लेते हैं, गुजारा हो जाता है। 1 रोटी के बजाय आधी रोटी खा लेते हैं। जिस तरह फ़ाद ने आपसे शेयर की ना बात
कि पानी नापैद होना, यानी कि पानी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, पानी दस्तयाब ही नहीं है। और अगर कहीं मीलों सफ़र करके, माइल्स उनको वॉक करना पड़ता है, पैदल चल के जाना पड़ता है, अगर पानी मुयस्सर आ भी जाए तो आप और मैं उस पानी को अपने करीब रखना गवारा ना करें जो हमारे वो मुसलमान बहन और भाई पीने पर मजबूर हैं, क्योंकि पानी ज़िंदगी है, पानी के बगैर ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं। तो हमें उन्हें साफ़ पानी पिलाना है। अल्लाह ने हमें देखें कितनी नेमतों से नवाजा है, कितनी करम नवाजी है। यकीन जानिए जिस इम्तिहान से वो लोग गुज़र रहे हैं, और गुज़र ही जाता है, गुज़र ही जाना है, एक ना एक दिन ज़िंदगी गुज़र ही जाती है। आप और मैं अपने एज पर गौर करेंगे तो ज़िंदगी के कितने साल हैं जो हमें आज पता ही नहीं चला, एक ख्वाब की तरह ज़िंदगी गुज़र गई। तो आप, एक मौत अटल हकीकत है, अगर मौत आ जाए और इंसान लाखों करोड़ों इस दुनिया में छोड़कर चला जाए और फिर मौत आने के बाद इंसान ये तसव्वुर करे कि काश मुझे ज़िंदगी लौटाई जाए और मैं गुरबा की मदद करूं, मैं अल्लाह की राह में दूं, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा था, उस पछताने से बेहतर है कि हम उस वक्त कहें कि काश हमें ये मिल जाए। ये काश फिर काश रह जाएगा। ज़िंदगी एक बार मिलती है और इसको अगर वसूल करना है, आपने अगर अबदी ज़िंदगी की तैयारी करनी है, जिस असल मंजिल के लिए हम इस दुनिया में आए हैं वो मंजिल आपको कामयाब बनानी है, तो फिर मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खल्क़े खुदा की राह से पत्थर हटा के देख। आप लोगों के लिए आसानियाँ करें, आपकी दुनिया की मंजिल भी आसान हो जाएगी, आपकी आखिरत की मंजिल भी आसान हो जाएगी। अपने पेरेंट्स की तरफ से आज आप जो कुछ भी हैं, अल्लाह ने आपको जितना भी नवाजा है, जो भी आपका स्टेटस है, फाइनेंशियली आप जितने स्ट्रॉन्ग है, हर कामयाब इंसान के पीछे उसके पेरेंट्स का, उसके वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि रमज़ान का एक मौका है, महीना आ रहा है और बस आने को है, दस्तक दे रहा है। तो आप ये तसव्वुर करें कि अगर आप इस कार्य खैर में हिस्सा लें और आप अपने पेरेंट्स के नाम से उनको इसाले सवाब करने के लिए आप कहीं पानी के पंप्स लगा दें, उनकी नेकियों में इजाफा होता रहेगा। उलमा फरमाते हैं कि हमारे जो मरहुमीन हैं, जो लोग हमसे बिछड़ गए, इस दुनिया से कूच, इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी अरवाह मुंतज़िर होती हैं कि कब हमारे अपने हमें ईसाले सवाब करें। तो ये वो नेकी का काम है जिससे आपको भी सवाब मिलेगा, और बिलखुसूस अगर आपके पेरेंट्स अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके ईसाले सवाब के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक बहुत बड़ा सदका जारिया इससे बेहतर नहीं हो सकता। आप लोगों को इफ्तार करवाएं, दस्तरखान वसी करने की अपनी बरकतें हैं। अगर आप चाहते हैं आपका दस्तरखान वसी रहे, आपके मालो मता के अंदर बरकत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आसमानी आफात व बलियात से महफूज रखे। मतलब सदका ऐसी चीज़ है, ये तो बड़ी बड़ी बीमारियों को, बड़ी बड़ी परेशानियों को, बड़ी बड़ी बलाओं को टाल दिया करता है। यानी कि ये पैसा ऐसी चीज़ है कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए अल्लाह की राह में दें, अल्लाह ताला हर लिहाज से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। हम ज़ाहिरी सिक्योरिटी के लिए कितना लाखों रुपया खर्च कर देते हैं कि हम अपने आप को किसी तरह, अपने मालो मता को सिक्योर कर दें। आइए ना हम उसके साथ क्यों ना ये मामला तय कर लें कि जब वो सिक्योरिटी का फैसला कर ले तो फिर पूरी दुनिया मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपनी सिक्योरिटी हम उसके हाथ में दे दें, उसकी राह में दें, उसके बंदों के काम आए, उसके बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आपकी ज़िंदगी, आई गारंटी यू, जितना कुरान और हदीस की रोशनी उलमा से हमने सुनी है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अपनी नींद में सुकून चाहते हैं तो कोशिश करें 4 लोग आज आपकी वजह से सुकून की नींद सोएं। आप चाहते हैं आपके खाने में, रिस्क में बरकत हो, 4 भूखे लोगों को आज आप खाना खिलाकर सोएं, और फिर देखिए आपकी नींद में आपको क्या राहत, क्या सुकून, आपके कल्बी सुकून ये गारंटी करता नज़र आता है खिदमत खल्क़ का सफ़र। तो आइए ज़मीन वालों के काम आसान करें ताकि आसमान वाला आपके कामों को आसान कर दे। बड़ी रिक्वायरमेंट है रमज़ान राशन पैक्स के हवाले से भी। इफ्तार का दस्तरखान जो लगने जा रहा है एहसास के प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर आपने लाखों लोगों को इंशाअल्लाह हमने ये तहिया किया है, हमने ये कमिटमेंट किया अपने आप से कि अज़्म किया है कि हम इंशाअल्लाह इफ्तार करेंगे हमारे मुसलमान बहन और भाई। और इसी तरह हम आपसे ये चाहते हैं कि आप बड़ी तादाद में रमज़ान राशन पैक्स के हवाले से भी हमारी मदद व मुआवनत करें। अगर आपके किचन में इस वक्त इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, अशिया मौजूद हैं, अशिया खुर्दोनोश मौजूद हैं, आपके पास मसाला जात हैं, आपके पास घी तेल है, आपके पास दाल है, कम से कम सम हाउ मैनेज करके आप 2 वक्त की रोटी आपको मैसर आ जाती है। आप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ खिला देते हैं। ये रमज़ान राशन पैक हमारे लिए शायद जो भी अमाउंट्स हैं आपके सामने सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आपके लिए शायद नाजरीन ये कुछ भी ना हो, लेकिन ये उनके लिए बहुत कुछ है जो इसके मुंतज़िर हैं। उनकी पूरी
फैमिली जो कि 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल है। ये कोई नॉर्मल राशन पैक नहीं है, इसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है रमज़ान राशन पैक के नाम से। और इस तसव्वुर के साथ, इस प्लानिंग के साथ कि ये 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल जो फैमिली है, डिज़र्विंग फैमिली है, नीडी फैमिली है, उसके लिए काफ़ी हो और इंशाअल्लाह ये पूरे महीने कम से कम वो घर अपना 2 वक्त की रोटी जो है वो अरेंज कर सके, अपनी सारी और अपने इफ्तार का इंतज़ाम कर सके। ये तमाम जो मोटिवेशन है, तरगीब है, तहरीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए, यही एहसास का पैगाम है, यही एहसास का मिशन है, यही एहसास आपसे चाहता है। सर, आपने फात भाई जैसे बताया कि इस बड़े पैमाने पर हमें इस वक्त रिक्वायरमेंट्स ख्वास्तों में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें फ़ंड्स भी मज़ीद रिक्वायर्ड हैं। तो पानी का थोड़ा सा हमारे देखने वाले अगर व्यूवर्स आज वो ये डिसाइड करेंगे यस, एहसास एक क्रेडिबल इदारा है जिसके साथ हमें खड़े होना है और गुरबा की मदद के लिए दुनिया के किसी कोने से इस वक्त कोई हमें देख रहा हो, वो खड़ा हो जाए कि नहीं, इस मदद के सफ़र में हमें इनका साथी बनना है। इस क्रेडिबिलिटी के बाद अब लोग चाहते हैं कि हम किन प्रोजेक्ट्स में हम जो है वो ज़्यादा मुआवनत हमारी दरकार है या कहाँ किस शोबे में ज़्यादा फंड्स रिक्वायर्ड हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप पिन पॉइंट करें, आप थोड़ा हाईलाइट करें कि भाई अभी स्पेशली हम इन पैकेजेस के लिए आपसे चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो ताकि जो करंट नीड है हम उसको पूरा कर सकें। देखिए सुमेर भाई, ट्रांसपेरेंसी का जहाँ तक ताल्लुक है ये तो बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अरसे दराज से 10 साल से एहसास से जुड़े में वो आज भी एहसास को उसी तरह तवातुर से डोनेशन देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यही उनका वतीरा है, यही उनका एतमाद है कि एहसास उन दूर दराज इलाकों में भी पहुँच पाता है जहाँ पर हर कोई नहीं पहुँच पाता। और अगर आप बात करते हैं कि स्पेशली आजकल किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको पता है गर्मियों की आमद हो चुकी है, पाकिस्तान भर में गर्मियाँ अपने स्टार्ट के ऊपर हैं, बहुत से इलाकों में गर्मी का माहौल भी हो चुका है, पानी की इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है इन दिनों। आप सोचिए कि जहाँ पे पानी नापैद है, एक होता है पीने का पानी, एक होता है पानी की मौजूदगी, वहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पे इस चीज़ की कितनी अच्छा ज़रूरत महसूस होती होगी। रमज़ान की आमद है, सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए बमुश्किल, और ऐसे सूरत हाल में, ऐसे टाइम के ऊपर वहाँ पे लोगों के पास अफ्तारी का कोई सामान मौजूद नहीं है। हमारे आपके घरों में तो चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा होगा, मौजूद भी होंगी, लेकिन वहाँ पे जो हमारे फोकल पर्सन बता रहे हैं कि लोग आके रो रहे हैं उनके पास दरख्वास्तें जमा कराते वक्त कि क्या इस साल भी एहसास हमें अफ्तारी कराएगा, क्या इस साल भी हमारे बच्चे अफ्तार कर सकेंगे अपने घर वालों के साथ, अपने इलाके वालों के साथ। उसका जवाब हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि देखें तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है रोज़ाना की बुनियाद पर। लोगों को उम्मीद बन चुकी है, लोगों को पता है कि इस साल भी एहसास उसी तरह जिस तरह से अफ्तारी कराता है, इस साल भी उसी तरह अफ्तारी का एहतमाम करेगा। तो लोग जोग दरख्वास्तें भी लेके आ रहे हैं और अपने दूसरे मसाइल भी हमसे शेयर कर रहे हैं, जिसमें अव्वलीन तरजीह अफ्तारी की है। अफ्तारी के देखें ऐसा इवेंट है कि हर किसी को ज़रूरत होती है दस्तरखान पे, वहाँ पे सुमेर भाई ख्वाहिशात नहीं है, ज़रूरियात हैं। आप उनकी 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम कर देंगे ना, उनके दिल से जब दुआएं निकलेंगी आपको अफ्तारी के वक्त रमज़ान के महीने में, इसका अजर सिर्फ आपको अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है। और उन लोगों के दिलों से निकलेगी जिनके अपने पास खाने को भी कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है। घर और दूसरी चीज़ें तो बाद में हम आते हैं इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी ना हो, वो कितना दुखी दिल के साथ अपने आप को संभालता होगा। अल्लाह अकबर। नाजरीन, ये यानी कि सर्वाइवल का मसला है। पानी हो, खाना हो, ये 2 चीज़ें इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए, ज़िंदगी को बचाने के लिए चाहिए। जो फ़ात भाई ने कहा कि उनकी कोई हम उनको फैसिलिटेट करने की और बहुत कोई लग्जरीज़ प्रोवाइड करने की बात नहीं कर रहे, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जिनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर मुहाल है, हम उन ज़रूरियात को पूरा करने की बात कर रहे हैं। और बिलीव करें, बिलीव क्या करें, हर बंदा मोमिन ये बिलीव करता है, ये बिलीव रखता है कि ये तक़सीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। आप कम से कम ये तसव्वुर हम ज़रूर करें, हर वो शख्स जिसको रब ताला ने ज़रूरत से सिवा नवाजा है कि हम उनकी जगह और वो हमारी जगह भी हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ने हम पर करम फरमाया, हमें ऐसा माहौल मिला बचपन से, हमारी तरबियत तालीम इस तरह से हो गई कि आज अल्लाह ने हमें नवाजा हुआ है। हम ऐसी फैमिलीज़ में पैदा हो गए कि आज अल्लाह ने हमें नवाजा हुआ है। लेकिन ऐसे लोग के जो पैदा ही कोई बच्चा देखें ऐसे घर में हुआ कि जो घर है ही नहीं, एक झोपड़ी है, और फिर जिस तरह से उसको असबाब मिले, जिस तरह से उसको रिसोर्सेज मिले, तो उसके बाद उसने फिर किस तरह से अपने आप को उस स्टेटस तक ले जाना था, तो वो जिन तरह के हालात में गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, अगर आज वो बेरोज़गार है, उसके पास तालीम नहीं है, उसके पास पानी नहीं है, तो यकीनन वो तबका के जिसके पास आज ये सब कुछ है, इसका मतलब अल्लाह ने उस पर ये फ़ज़ल फ़रमाया है, ख़ास करम फ़रमाया है। तो अब उसकी ये ज़िम्मेदारी भी उसी रब ने दी है कि जाओ अपने उस भाई की ज़रूरत को पूरा करो।
आप दिल से बताइए कि अगर इस वक्त आपके दरवाजे पर दस्तक हो, आप दरवाज़ा खोलें और आपका अपना भाई खड़ा हो और कहे कि मुझे इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है खाने की, शदीद ज़रूरत है पानी की, आप अपने हिस्से का खाना उठाकर उसको दे देंगे, आप अपने हिस्से का पानी उठाकर उसको दे देंगे कि मेरा भाई इतनी उम्मीद से मेरे दरवाजे तक आया है। तो एहसास को भी आप यही समझें कि वो मुसलमान तबका जो आपका भाई है, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, हम उन्हीं गरीब भाइयों के लिए, उसी नादार तबके के लिए, उसी मुफलिस तबके के लिए आपके दरवाजे पर आज दस्तक देने आए हैं और इस उम्मीद के साथ आए हैं। अल्लाह पर हमें बड़ा यकीन है कि जिस तरह हमेशा उसने कई दरवाजे इस दस्तक के बाद खोले और ऐसे लोग फिर नमूदार हुए, ऐसे लोग फिर आगे आए कि जिन्होंने अपने वाकई में उन भाइयों की उसी अंदाज से मदद की कि जैसे एक भाई की मदद किया करता है। बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़े डिसिप्लिन के साथ, तमाम शरई तकाज़ों को पूरा करते हुए वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपके जो डोनेशंस हैं, आपकी जो चैरिटीज़ हैं, आपके जो सदक़ात हैं, आपकी जो ज़कात है, वो अमानतन वहाँ पहुँचा दी जाए कि जहाँ उसको पहुँचने का हक़ है। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एहसास अपने कांधों पर लेता है। अगर आप गौर करें, किसी से पैसे लेना शरई तौर पर मदद करने के लिए, एथिकली, रिलीजियसली, मोरली किसी की मदद करने के लिए आपको आवाज़ देना, ये कोई छोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ा बार है जो कि इस वक्त एहसास के कंधों पर है। लेकिन जब जज्बे सच्चे हों, जब नीयत आपकी अच्छी हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिज़ा आपका मकसद हो, आपका हासिल हो, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आज 16 साल के अरसे में आप जानते हैं कि कितनी अचीवमेंट्स हैं, जितनी कामयाबियाँ एहसास के हिस्से में आई हैं। हम सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और शुक्र बजा लाते हैं, और सेकेंडली हम एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उन तमाम डोनर्स को जिन्होंने ट्रस्ट का मुज़ाहिरा करते हुए, एतमाद का मुज़ाहिरा करते हुए एहसास उनमें बेदार हुआ और वो फिर मदद के लिए अपने मुसलमान बहन और भाइयों की आगे आए। और हर प्रोजेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से आपने स्ट्रेंथन किया एहसास को, और फिर हम इस काबिल हुए कि अल्लाह की करम से, उसकी फ़ज़ल से, और उसने ये हमें नुसरत और फ़तह अता की कि हम कह सकते हैं कि लाखों लोग एहसास की छतरी के साए में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस्तिफ़ादा किया। पानी की ज़रूरतें हज़ारों की तादाद में पूरी की गई। रमज़ान राशन पैक, हम तो ये डेली बेसिस पर हमारा ये वतीरा है, ट्रेंड है कि भाई कुछ भी हो कि जो हमारा राशन पैक है पूरे साल अल्हम्दुलिल्लाह रुकता नहीं है। ये मदद व मुआवनत का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि खाना, और जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया, पानी और खाना, इन दो चीज़ों पर इंसान कॉम्प्रोमाइज़ चाह कर भी नहीं कर सकता। तो एहसास भी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, नहीं तैयार है। अल्लाह की रिज़ा के लिए, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम ये सफ़र जारी रखे हुए हैं। और ये सफ़र, ये हमारा सफ़र नहीं है, अल्लाह के हुक्म से ये सफ़र चल रहा है और ये इसी तरह चलता रहेगा। कोई मदद करता है, कोई मदद नहीं करता, इंशाअल्लाह एहसास अपना काम करता रहेगा। जिसके दिल में एहसास है वो एहसास के साथ इसी तरह जुड़ता रहेगा। और हमारे साथ यकीनन इस वक्त एक कंट्रीब्यूशन पेश की गई है एहसास के इस प्लेटफॉर्म पर। मिसिस वजिया गदनफर हैं, हमारी बहन, इन्होंने अमेरिका से $300 की कंट्रीब्यूशन दी है और ये डोनेशन इन्होंने ज़कात की मद में दिया है। इसी तरह मिस रशीदा हैं, हमारी एक सिस्टर हैं, रशीदा हनीफ़, इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है $2250 से। इन्होंने अपनी मोहब्बत और अपनी कंट्रीब्यूशन पेश की है। और इसी तरह 3 बड़े पानी के हैंड पंप्स के लिए इस वक्त हमारे पास डोनेशन हमें मौसूल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह मिस सबा आमिर की तरफ से, और इन्होंने भी एक कंट्रीब्यूशन इंग्लैंड से इस वक्त पहुंचाई है। 75 पाउंड्स से इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन रमज़ान राशन पैक की मद में ये मोहब्बत अपने मुसलमान बहन और भाइयों के लिए दी है। इसी तरह मिसेस फ़रहाल हैं, हमारी बालखी, ये हमारी सिस्टर हैं, इन्होंने $185 से स्मॉल हैंड पम्प की मद में इन्होंने अपनी ये कंट्रीब्यूशन, अपनी ये मोहब्बत पेश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम कंट्रीब्यूशंस को, इन तमाम खिदमात को, इन तमाम डोनेशंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन आप जब किसी की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो फिर समझ लें आपने अपनी ज़रूरत, अपनी हाजत अपने रब के हवाले कर दी, और वो ऐसा अता करने वाला है कि जब वो ये देखता है कि मेरा कैसा प्यारा बंदा है जो मेरे दिए हुए माल में से दूसरों पर, मेरी मखलूक पर, मेरे कुंबे पर इस अंदाज से खर्च करता है, तो फिर मेरे रब के जो चादर रहमत है बड़ी वसी है, वो यकीनन आपको बड़ा नवाजेगी। मैसेज चाहता हूँ मैं फ़ात भाई आपकी तरफ से, एक ऐसा मैसेज जाए कि ये ट्रांसमिशन, क्योंकि ब्रेक के बाद भी इंशाअल्लाह नाज़रीन कंटिन्यू रहेगी, ये प्रोग्राम बहरहाल ब्रेक के बाद कंटिन्यू रहने के बाद भी, मज़ीद 1 घंटे बाद जारी रहने के बाद आज के लिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये नेकी का सफ़र जारी रहना चाहिए और आपने फिर इसको लीड करना है।
क्योंकि ये हम सबका एक मिलकर इज्तिमाई काम है, इज्तिमाई और कलेक्टिव एफ़र्ट्स हैं हमारे, जो उस तबके के लिए है कि जो हमारा मुंतज़िर है। सर क्या मैसेज देंगे? जुबैर भाई, जैसा अभी आपने कहा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के डोनेशन का सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत से लोग हैं आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं, एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक आस लगाए बैठे हैं कि इस साल भी हमें उसी तरीके से हमारे बच्चों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम होगा और उनके लिए पानी का भी बंदोबस्त होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल भी आप एहसास का उसी तरह साथ देंगे जिस तरीके से आपने पिछले साल भी दिया। ज़बरदस्त। मोहम्मद अफजल हमारे एक भाई हैं, उन्होंने भी अपनी कंट्रीब्यूशन पेश की है $185 से ज़कात की मद में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी भी इस कंट्रीब्यूशन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ब्रेक के बाद जो है वो कंटिन्यू करेंगे, सैयद अदनान खालिद हमारे को होस्ट हैं, इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे और उनके साथ फवाद बेग साहब होंगे, रिप्रेजेंटेटिव हैं एहसास के, वो भी आपसे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे और जो वहाँ की ऑब्जर्वेशंस हैं, वहाँ के जो विटनेस करते हैं वो ग्राउंड पर रहते हुए लोगों के हालात, उनके मसाइल और फिर क्या कुछ अचीव किया एहसास ने, ये पूरी इंशाअल्लाह जो सफ़र है खिदमत का वो आपसे अपने अपने अंदाज़ में शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। मैं सैयद फ़ाद हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा से हमारे लिए एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन रहते हैं। ये कंटिन्यू रहेगा नेकी का सफ़र नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ ही रहेंगे और नेकी का ये सफ़र रुकना नहीं चाहिए। जब ये हमारा काम बन गया तो फिर ये हम यहाँ से कंटिन्यू करें नहीं करें, वहाँ रहकर आपने इसको कंटिन्यू रखना है। नेकी की तरगीब देना भी एक बहुत बड़ी नेकी है और सबसे बड़ी जो मोटिवेशन हमें इस्लाम ने दी है कि अगर नेकी के लिए कोई मोटिवेशन दे और वो नेकी का काम कर ले तो नेकी की तरगीब देने वाले मोटिवेटर को भी फिर वही रिवॉर्ड और वही इनाम मिला करता है। तो लेट्स ज्वाइन आवर हैंड्स टुगेदर एंड मेक द सोल्स स्माइल। अपने मेज़बान सुमैर अहमद को दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।